In this video, we will enter into chapter number 7, that is alternating current. So it is the introduction part of this alternating current. We have so far discussed or considered the direct current sources and circuits with the DC sources. So DC currents do not change direction with time. So just see, I would like to represent it graphically. DC current do not change the direction. This is some graph. This may be current or voltage in bidirection, and this is time along x-axis, right? X direction. So if you can say about DC current or DC voltage, it may be up to you. And then the amplitude of this current will not change the direction with the passage of time. So this is what the DC current or DC voltage is. So question is, फिर हम क्यों बात करेंगे, हमें अल्टरनेटिंग करंट क्यों सीखना है, या आपको एक अल्टरनेटिंग करंट क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसके कुछ फ़ायदों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम ये जो ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। सो वी विल स्टार्ट विद नाउ एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारा जो इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई घरों में है, ऑफिस में है, वो जो वोल्टेज वेरी हम यूज़ करते हैं, इट इज़ अ साइन फंक्शन विद टाइम। सो ऐसी वोल्टेज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और वो वोल्टेज जो करंट पैदा करती है सर्किट में, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि यदि ये डायरेक्ट करंट है, दिस इज़ DC, ईदर इट इज़ करंट और ईदर इट इज़ वोल्टेज। यदि मैं अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, सो यू कैन टेक इट एज AC, ईदर इट इज़ ए करंट और ईदर इट इज़ ए वोल्टेज। सो it will change its direction with the passage of time. That is the difference between the two. All right. So इसका फायदा और भाई, you are studying about the AC voltage and AC currents. Its generation, its transmission and distribution of AC is more economical. ये सस्ता रहता है, और आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो AC वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ मेनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड बाय द पावर कंपनीज। पावर कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड करती है या ट्रांसमिट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है। ये इसको पढ़ने का फ़ायदा है। मेन रीज़न फॉर प्रेफरिंग द यूज़ ऑफ AC वोल्टेज, हम AC वोल्टेज का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं ओवर द DC वोल्टेज, इज़ दैट AC voltage can easily and efficiently converted from one voltage to the other and can reach to the distant places by using transformers. तो AC वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से डिस्टेंट प्लेसेस तक ले जाना बहुत इजी होता है rather in comparison to DC. So AC travels on the surface of the conductor. अल्टरनेटिंग जो करंट और वोल्टेज है, ये it is easy to travel it to the distant places because AC travels on the surface of the conductor, and so costly conducting material can be saved for the long distance transmission by using the inner core cheaper. आप जो उसका inner core है, because it will travel through the surface, so you can use the inner core cheaper material like steel. So electrical energy can also be transmitted economically over the long distances. AC circuit exhibit the characteristics which are exploited in many devices of daily use. For example, whenever we tune our radio to a favorite station, we are taking the advantages of special property of AC circuits. So we will study in this chapter about alternating current, alternating voltage, and all about these AC circuits in details in this chapter. So before studying this, ये सब समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जिस बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम उस बेसिक मैथमेटिक्स की आज सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे चर्चा करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें तह तक समझ आएँ, ताकि आपको आगे जो हम टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे तो उसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए।
आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि जो साइन थीटा का वैल्यू जो है किस तरीके से वेरी करता है, और कॉस थीटा का वैल्यूज़ का टेबल भी आपने 10th क्लास में कर रखा है। हम उसी की चर्चा करते हैं। यदि हमारे पास यहाँ जो एक्स एक्सिस में थीटा आपने लिया है और बाई एक्सिस में आपने बाई को कंसिडर किया है, और आप बाई के साथ साइन थीटा का वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगा उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम एक्स एक्सिस का ज़रा ध्यान दें कि इसका डिवीज़न किस तरीके से हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो वुड्स ओरिजिन, and these lines you're watching over here, it is the multiple of 30, and 30, 60, 120, 150 and 180, so that is visible to you, so I would like to explain it further. और जो बाई एक्सिस में इसकी corresponding value of बाई is marked over here. So we have some observations on this graph. It is at 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree, 180 degree, 210, 240, 270, 300, 330 and 360. अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस टेबल से कोई लेना देना नहीं, आपको जस्ट ये समझना है कि ये जो ग्राफ बना है फिजिकली समाज में, नेचर में आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ये मैथमेटिक्स इसका बाद की बात है, उसको हम बाद में कर लेंगे। अपने भी टेबल में जो 10 तक आप जानते हैं वो ये पढ़ते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। ओके, सो 1/2 मीन 0.5। सो यहाँ देखिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो इतना होगा, ये देखिए आप इस तरीके से। और जब ये 60 साइन 60 डिग्री हो जाएगा, सो दिस इज 0.87 means this is 87% of 1, and at 90 degree this will become 100% of 1. जरा आप देखते चले जाइए, इसमें थोड़ा ड्रॉ करना मुझे मुश्किल आएगी। दोबारा फिर से आप अगले ऑब्जर्वेशन में चले जाइए। When there is a sine 120 degree, so see sine, this is sine 120 degree, so sine 120 degree is equal to sine 90 degree plus 30 degree. I can write it like this. You know, sine 90 degree plus theta, you enter into the second quadrant, and where sine theta is positive, and the angle will now change to cos theta. What does this mean? This is cos 30 degree. So cos 30 degree means still it is under root 3/2. Under root 3/2 means यदि उसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी 0.87 ब्रैकेट में अंडर रूट 3/2, and then you will go for sin 150 डिग्री। आप इस पॉइंट पर चले आइए और साइन 150 डिग्री की वैल्यू इतनी है। अब गौर से देखिए, जरा इधर से इसको मैच कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, यू आर जस्ट वॉचिंग ओवर हेयर कि जो साइन का वैल्यू 30 डिग्री का है और 150 डिग्री का, दोनों सेम है। दिस वैल्यू इज वंस अगेन 1/2, दैट कुड बी रिटन एज 0.5। और इसको आप यहाँ से करिए, साइन 150 डिग्री मीन्स साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, which is equal to sin 90 degree plus theta is some cos theta, so this is cos 60 degree, that is equal to 1/2. so आप यहाँ देखिए, जरा इस लाइन को आपको ऐसे ड्रा करना है और इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ देखते चले जाइए कि जिस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू 90 तक बढ़ता है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूर 10+2 स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। आप गौर से देखिए, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। 0 फिर 1/2 हुआ, फिर 0.87 नियरली 87% हुआ, और ये 100% हो गया। 100% मीन्स 1, द 100% ऑफ 1 इज़ 1। सो 1 तक गया, उसके बाद आप आगे गए 120 डिग्री के ऊपर। आप के जो स्पाइक्स हैं वो फिर छोटे होने शुरू हो गए और छोटे हो गए, एंड व्हेन इट रीच 280 डिग्री इट विल वंस अगेन बिकम इक्वल टू 0। सो नाउ मूव अहेड। यहाँ आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइन 30 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री both have same value, that is equal to 1/2, and sin 60 degree
and sine 120 degree both have same value, that is equal to under root 3 by 2. So here you can see when the angle will enter into third quadrant. ये देखिए यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं. First quadrant is from 0 to 90 degree. Second quadrant is from 90 to 180 degree. Third quadrant is 180 to 270 degree. And fourth quadrant is from 270 to 360 degree. So now you are here up to 270 degree. So you're watching over here, you're talking about 210 degree. So sine 210 means sine 210 degree is equal to sine 180 degree plus 30 degree. So this is equal to, you are now in the third quadrant where sine will be negative. So the angle will remain the same. This is sine negative of sine 30 degree. So sine 30 degree is 1 by 2 means 0.5. It's minus of 0.5. This is like that. So I would like to explain it again and again. So sine 210 degree, this is minus 0.5. In the same case, so as the wave is progressing further, the angle will become 240 degree. So as it is rotating in a circle, I will explain it well. So now see here, sine 240 degree, this is equal to sine 180 degree plus 60 degree. So the angle will remain the same because it will not change at 180 degree. Sine 180 degree plus theta will remain sine theta. So this is sine 180 degree plus theta. You enter in the third quadrant and still sine is negative. So it is minus sine 60 degree. So that is minus under root 3 by 2. That is minus 0.87. So see, this value and this value both are same. This value and this value both are same. So you can remember this. Now actually you have to see कि किस तरीके से जो wave है, how its amplitude varies from 0 to 180 degree and from 180 degree to 360 degree. So one thing is very important for us to learn. अब हमें जो बहुत important चीज़ सीखनी है, आप ये देखिए, यहाँ से जब जो वेव है वो 0 से 90 डिग्री तक जाती है, जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री तक जाता है, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 से लेके 1 तक जाता है. जब आप देखते हैं कि जो एंगल है वो 180 डिग्री टू 270 तक जाता है, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वेव वेरी करता है 0 से -1 तक. और जब एंगल जाता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, तो वापस फिर से एम्पलीट्यूड जाता है -1 to 0. This will go from -1 to 0. So it is from 0 to 90 degree, it will go like that. And then 90 to 180 degree, it will come to 0. And then from 180 degree to 270, it will go like this. And 272 back to 360 degree, it will become 0. So this is how this the variation of sine theta will takes place. अब आपको क्या सीखना है यहाँ से? जो सीखने वाली बात ये है कि यदि मैं ऐसे इसको लिखूँ y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आप ग्राफ में देख रहे हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा. नाउ द कोफिशिएंट ऑफ 1 sin theta is 1 and multiple of sin theta. So now sin theta will fluctuate this 1 in such a way from 0 to 360 degree कि इसका जो वैल्यू होगा वो +1 to -1 फ्लक्चुएट करेगा. It will fluctuate between +1 to -1, राइट. यहाँ देखिए आप 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1,
एंड -1 to 0। यहाँ से आपको बहुत सुंदर बात जो है वो सीखनी है, वो सीखना ये है जो हमें आगे काम आने वाला है इस चैप्टर में। यदि मैं ऐसे लिखूँ, अच्छा यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ बाई इज इक्वल टू 10 sin थीटा, देन यू हैव टू एस्टिमेट कि फिर आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे y इज इक्वल टू 1 sin थीटा, इसका मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है इसका वो होगा 1 and -1। ये इसमें क्या होगा, इन दिस केस इट इज 1 and -1, बट इन दिस केस देन y is equal to 10 sin theta, so the amplitude will now vary from 0 to 360 degree. This will fluctuate between 10 to -10, right? This is what we have to learn. इसका मतलब इस ग्राफ में यदि मैं ये वेरिएशन बनाता हूँ तो ये वेरिएशन कैसा होना चाहिए। इस वेरिएशन को हम यहाँ बना देते हैं कि ये देखिए अब साइन का वेरिएशन कैसा होना चाहिए। आपको जस्ट एक आइडिया लेना है, बाकी ग्राफ एक्यूरेटली ऊपर बना हुआ है। आपको जस्ट इतना सा पार्ट सीखना है कि ये इसका जो वेरिएशन तो ऐसे ही रहेगा। सो व्हाट विल हैपन ना, दिस पार्ट इज इक्वल टू +10 over here and this part will be -10. Okay, so now 10 multiplied by sin theta means now 10 the value of 10 will fluctuate between 10 and -10 from 0 to 360 degree. This is one thing we have to learn from here. What does this mean? अब हम कांस्टेंट को शिफ्ट करके किसी वेरिएबल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वी हैव टू गो डाउन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। We will go now to the next page. So this is the variation of y is equal to sin theta, the same graph, and y is equal to cos theta. I will discuss it also. देखिए यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि मैं यूँ लिखूँ y is equal to, मैंने आपको भी एग्जांपल में दिया था कि 10 टाइम sin थीटा यदि हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 1 की जगह 10 हो जाएगा और -1 की जगह -10 हो जाएगा। तो फिर 5 की जगह 0.5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0.87 की जगह क्या हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। मीन्स जो साइन है वो इस 10 की वैल्यू को मैं यूँ कहूँ अपने गांव की भाषा में, ये नचाएगा 10 और -10 के बीच में, 10 और -10 के बीच में। यदि मैं अब इसको ऐसे करूँ, मैं कांस्टेंट की जगह वेरिएबल लगा दूँ, मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करूँ y इज इक्वल टू सम r sin थीटा। अब आप क्या समझेंगे इससे, इससे आप ये समझेंगे अब ये r को नचाएगा। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में 10+1 में पढ़ा है कि यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। ये बाई हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। अब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब ये वैल्यू r हो जाएगी, दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू r। यहाँ से आपको ऐसे समझना है, और आगे जो चैप्टर में मैंने इस्तेमाल करना है वो चीज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मैं ऐसे लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूँ i इज इक्वल टू I0 sin थीटा, या मैं इसको ऐसे लिखूँ, चलो मैं i इज इक्वल टू I0 sin थीटा को पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब ग्राफ कैसा होना चाहिए, अब ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, दिस इज थीटा वेरिएशन और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगी। अब ये I0 पार्ट जो होगा इसके साथ अब साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ I0 होगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो -I0 होगी। अब ये वैल्यू I0 और -I0 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएशन। और यदि मैं ऐसे लिखूं, आगे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको v इज इक्वल टू B0 sin थीटा। नाउ सी इट केयरफुली, इफ आई विल राइट b इज इक्वल टू B0 sin थीटा, नाउ व्हाट विल हैपन, sin थीटा इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ B0, so it will now oscillate this B0 between B0 and -B0,
So see it graphically how it looks like. It's like that, and this is theta along x-axis, and now this voltage is along y-axis. So the highest value of this voltage, instantaneous voltage, will be V0. So this part will be V0, and this part will be minus V0. So now this, as it is the multiple of sin theta, ये sin theta के साथ आपने इसको गुणा किया है, तो ये क्या करेगा, इसको नचाएगा B0 और माइनस B0 के बीच में, ये एक साइकिल में. अब देखिए 0 to 90 डिग्री ऐसे बढ़ेगा, 90 to 180 ऐसे बढ़ेगा, 180 to 270 ऐसे बढ़ेगा, और 270 to 360 ऐसे बढ़ेगा. And it behave like a wave. So this is what the variation of this is called alternating voltage. This variation is called alternating voltage, and this variation is called alternating current. This is called alternating current. So one thing I would like to discuss with you that is very essential before going in detail in the text of this chapter. We are using the phrases of AC voltage, and AC current. हम बार बार इसके बीच में बोलेंगे AC voltage and AC current. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ऐसे नहीं समझना है इसको कि जो ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज है और ये अल्टरनेटिंग करंट है. Don't take it like that. These words are contradictory and redundant as well. So you just take the meaning of this alternating voltage, a voltage that change its direction with time. This is alternating voltage, and its behavior will be like that. And don't take it like alternating current. So it is meaningless. You just take AC current. If I will pronounce in the text AC current, then you will take it like this. That is variation of this current will be like the graph shown in figure number 1, and AC voltage is as the graph shown in figure number 2. So the rest is the deeper discussion of the related mathematics will be taken place in the text coming ahead of you in this chapter. So thank you very much. This is all about the introduction part of this chapter. Thank you very much.